So today we start the DMLT DMRT एग्जामिनेशन बोर्ड ओडिशा का पेपर जो कि पैथोलॉजी, ठीक है। सो दिस इज पेपर नंबर 1 एंड दिस इज सेकेंड ईयर DMLT एंड एनुअल एग्जामिनेशन 2025, right everyone? Okay, so as you can see here, the first question is given here that what is histotechnique? Okay, what is histotechnique? Describe different step of tissue processing, dehydration, prep. Okay, so पहला क्या दिया है कि dehydration, second is clearing, third is paraffin impregation and fourth हो गया कि blocking, ठीक है। So write the details about the hematotoxin and eosin staining. Okay. So here another question that HE staining के बारे में दिया गया है। टोटल हो गया 20 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी दैट हिस्टोटेक्निक, व्हाट इज हिस्टोटेक्निक? So histotechnique is the branch of laboratory science. Okay, histotechnique is the branch of laboratory science that deals with the preparation of tissue specimen. Okay, for the for the microscopic examination. So histotechnique हम क्या कहते हैं कि it is mainly the branch of science that deals with the preparation of tissue specimen, okay, for the microscopic examination. It includes fixation, processing, embedding, section cutting, staining and mounting. So the tissue can be studied accurately for diagnosis and research. Clear everyone? Okay, so नेक्स्ट हो गया कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिस्टोटेक्निक। ओके, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्टोटेक्निक? टू प्रिजर्व द टिश्यू आर्किटेक्चर। ओके, पहला हो गया कि टू प्रिजर्व द टिश्यू आर्किटेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट द डीकम्पोजिशन एंड ऑटोलाइसिस, ठीक है, टू प्रिवेंट द डीकम्पोजिशन एंड ऑटोलाइसिस। ओके, next is to produce a thin section that is suitable for microscopic examination. Okay, so whenever we have to perform the section cutting, we generally cutting with thin section. Okay, not thick section. Okay, we perform thin section. Okay, why section? Because it is good for the microscopic examination. It is suitable for the microscopic examination. Then to highlight the different cellular components using stain. Okay, so using stain we highlighted the different part of cellular component. Clear? Next, पहला हो गया कि टिश्यू प्रोसेसिंग। सो द टिश्यू प्रोसेसिंग इज द मेथड बाय व्हिच वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम टिश्यू। ओके, सो व्हाट इज टिश्यू प्रोसेसिंग? सो टिश्यू प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, ये जनरल एक मेथड होता है जो कि हम वाटर का रिमूव करते हैं फ्रॉम टिश्यू से, ठीक है, एंड रिप्लेस विथ पैराफिन वैक्स। ओके, एंड हम रिप्लेस करते हैं पैराफिन वैक्स से, दैट अलाउइंग थीन सेक्शन टू बी कॉट यूजिंग ए माइक्रोटोम। ओके, सो ये पहले से मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सो पहला हो गया हमारा डिहाइड्रेशन। ये जनरली 20 मार्क का क्वेश्चन, सो डिवाइड करके दिया गया है, ठीक है। सो डिहाइड्रेशन ये जनरली 3 मार्क का क्वेश्चन है। सो डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दैट डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ removing water from fixed tissue. Okay, so dehydration is the process of removing water from the fixed tissue because paraffin wax is not miscible with water. Okay, so dehydration का मतलब क्या हो गया कि ये जनरल एक प्रोसेस होता है, हम क्या करते हैं कि वाटर को रिमूव करते हैं फ्रॉम द fixed tissue. Why we remove? Because paraffin wax is not miscible with water. Clear everyone? Okay, next हो गया कि procedure. Okay, so the procedure, as you can talk here, that tissue are passed through increasing concentration of alcohol.
ओके, एज इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन, पहला कि 70% अल्कोहल, देन 80% अल्कोहल, देन 90% अल्कोहल, sorry, as here 70% ethanol, not alcohol. Okay, so 70% ethanol, then 80% ethanol, and then 90% ethanol, then 95% ethanol. Okay, so absolute 100% ethanol. Okay, so as increasing concentration, the tissue are generally passed. Okay, clear everyone? Next. Next, the purpose. Okay, so as you can see here, the purpose is remove water from the tissue. Okay, what is the purpose? As you can see that the previous slide, that we remove water from the tissue. Okay, and it prevent the tissue distortion during the embedding and prepare tissue for the clearing agent. Okay, नेक्स्ट दिया गया है कि कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ओके, सो व्हाट इज द कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट? दैट इथाइल अल्कोहल. Okay, ethyl alcohol is the most common. That's why in previous slide we मतलब I talk with alcohol. Okay, but this is not alcohol. This is ethanol. Okay, so as this slide, this is ethanol. Okay, so ethyl alcohol is the most common dehydrating agent. Next is isopropyl alcohol. Okay, and then acetone. So हमारा जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या होता है? इथाइल अल्कोहल, पहला हो गया कि इथाइल अल्कोहल, दूसरा हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तीसरा हो गया एसीटोन. ओके, सो इन तीनों में से ज़्यादातर हम यूज करते हैं इथाइल अल्कोहल का. ओके, नेक्स्ट. ठीक है. ओके, नेक्स्ट हो गया कि क्लियरिंग. ठीक है, सो क्लियरिंग की अगर हम बात करें तो क्लियरिंग भी 3 नंबर का क्वेश्चन है. ठीक है, सेकंड हो गया क्लियरिंग. सो क्लियरिंग इज द रिप्लेसमेंट ऑफ अल्कोहल. ठीक है, ये जनरल क्या करता है कि अल्कोहल को रिप्लेस करता है. इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ अल्कोहल with a solvent that is miscible with both alcohol and paraffin wax. Clear everyone? Clearing is the replacement of alcohol with a solvent that is miscible with both alcohol and paraffin wax. Okay, clear? What is the purpose? Why we do this? Because it makes the tissue transparent. Why we clearing occur? Because it makes the tissue transparent. Okay, this is important. Okay, next is remove dehydrating agent. हम dehydrating agent को हम remove करते हैं. Why? Because it's good for the looking for tissue transparent and allow the infiltration of paraffin wax. Clear everyone? ठीक है. नेक्स्ट, कॉमन क्लियरिंग एजेंट. ओके, सो जनरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम प्रोसीजर है. ठीक है, प्रोसीजर सेम ही है, मतलब उसका जो भी डेफिनेशन हो गया, व्हाट इज द पर्पज हो गया, कॉमन क्लियरिंग एजेंट, प्रिकॉशन. ठीक है, सो कॉमन क्लियरिंग एजेंट की अगर हम बात करें कि जाइलिन हो गया, टोल्यूइन, क्लोरोफॉर्म, ओके, देन सीडरवुड ऑयल. ठीक है, तो ज़्यादातर हम जाइलिन को हम ज़्यादा यूज करते हैं. इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज. ठीक है, जाइलिन. ठीक है, सो दीज आर द क्लियरिंग एजेंट. नेक्स्ट इज प्रिकॉशन. सो प्रिकॉशन की अगर हम बात करें तो प्रिकॉशन इज फॉर एक्सेसिव क्लियरिंग में हार्डन द टिश्यू. ठीक है, अगर हम ज़्यादा एक्सेसिव क्लियरिंग कर देते हैं तो इट मेक्स द टिश्यू हार्ड. ओके, and it is inadequate clearing may be result in poor wax infiltration. ठीक है, clear everyone? next. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट शॉर्ट जो कि 3 मार्क का है, ये हो गया थर्ड, पैराफिन इम्प्रीगेशन. ठीक है, सो पैराफिन इम्प्रीगेशन अदरवाइज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन. ठीक है, इनफिल्ट्रेशन किसको कहते हैं? पैराफिन इम्प्रीगेशन को. तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि पैराफिन इम्प्रीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द क्लियरिंग एजेंट विथ मोल्टेन पैराफिन वैक्स. ओके, सो पैराफिन इम्प्रीगेशन एक प्रोसेस होता है. हम क्या करते हैं कि हम क्लियरिंग एजेंट जो भी है उसको हम रिप्लेस करते हैं विथ मोल्टेन पैराफिन वैक्स.
What is the procedure? Procedure is tissue is immersed with molten paraffin wax. टिश्यू को हम क्या करते हैं कि इमर्ज करते हैं molten paraffin wax के साथ, which is maintained at about 56 to 60 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है कि 56 के लेके 60 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड wax इज पेनिट्रेट्स ऑल टिश्यू स्पेसेस। ओके, सो wax जो होता है ना, ये पेनिट्रेट्स करता है ऑल द टिश्यू। क्लियर? Next is purpose. What is the purpose? Why do the paraffin application? Okay, why you do infiltration? Why? Because it provides the support to tissue. Why? Because it provides the support to tissue and makes tissue film enough for thin section cutting. Okay, and it is makes the tissue from enough for the thin section cutting. ठीक है, ठीक है। एंड इट प्रिजर्व द माइक्रोस्कोपिक डिटेल। ठीक है, और क्या करते हैं हम, इट प्रिजर्व द माइक्रोस्कोपिक डिटेल। ओके, नेक्स्ट हो गया कि ब्लॉकिंग। ठीक है, ब्लॉकिंग जिसको हम एम्बेडिंग भी कहते हैं, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, सो ब्लॉकिंग और एम्बेडिंग। ओके, सो ब्लॉकिंग और एम्बेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द इनफिल्ट्रेटेड टिश्यू into a mold that is filled with molten paraffin wax to form a solid block. क्लियर? ब्लॉकिंग क्या आता है, हम जनरली ब्लॉक करते हैं, यानी कि एम्बेडिंग करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो ब्लॉकिंग और एम्बेडिंग ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम प्लेसिंग द इनफिल्टर्ड टिश्यू इनटू ए मोल्ड। हम मोल्ड का फील्ड कर देते हैं विद द मोल्टन पैराफिन वॉक्स के जरिए, हम मोल्टन पैराफिन वॉक्स के जरिए हम फील्ड कर देते हैं, एक सॉलिड ब्लॉक हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? सो जनरली हम प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो द टिश्यू इज करेक्टली ओरिएंटेड इन द मोल्ड। टिश्यू को हम करेक्टली प्लेस करते हैं उसके अंदर। देन मोल्टन पैराफिन इज पोर्ड अराउंड इट। देन हम मोल्टन पैराफिन को हम उसमें हम जाने देते हैं। ठीक है, उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देन द ब्लॉक इज कूल्ड रैपिडली अंटिल सॉलिड। ओके, सो जैसे ही द ब्लॉक जैसे ही ये ब्लॉक जैसे ही सॉलिड हो जाएगा और जितना ये ठंडा होगा, ओके, उस हिसाब से ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, सो द ब्लॉक इज कूल्ड रैपिडली अंटिल द सॉलिड। क्लियर? ओके, सो क्यों हम करते हैं? व्हाई द पर्पज? द पर्पज इज इट होल्ड्स द टिश्यू इन प्रॉपर पोजीशन। हम क्यों करते हैं? हम ब्लॉकिंग या फिर एम्बेडिंग, हम मान लो कि यहाँ पर एक टिश्यू हमने रखा है। ठीक है, तो इसको हम क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? बिकॉज इट होल्ड्स द टिश्यू। ये क्या करता है कि इट होल्ड्स द टिश्यू विथ प्रॉपर पोजीशन। ये क्या करता है कि ये इसका जो पोजीशन होता है ये फिक्स हो जाता है। अगर हम एम्बेडिंग कर देते हैं तो इसका पोजीशन फिक्स हो जाता है। इट प्रोड्यूस ए फैम ब्लॉक फॉर माइक्रोटोमी। जैसे कि हम माइक्रोटोम में, ठीक है, रोटरी माइक्रोटोम हो गया, तो उससे जब हम इसको सेक्शन कटिंग करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, ये जनरली बहुत ही थीन सेक्शन आएगा। ठीक है, एंड इट एंश्योर द एक्यूरेट सेक्शनिंग एंड डायग्नोसिस। क्लियर एवरीवन? ओके, सो व्हाट द पर्पस इज टिश्यू, इट होल्ड्स द टिश्यू इन प्रॉपर पोजीशन। क्लियर? then the last step is the हेमाटोटॉक्सिलिन एंड योसिन स्टेनिंग, यानी कि एचई स्टेनिंग के बारे में पूछा गया है और ये जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, सो एचई स्टेनिंग यानी कि हेमाटोटॉक्सिलिन एंड योसिन स्टेनिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज रूटीन स्टेनिंग। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज रूटीन स्टेनिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी for the demonstrating tissue structure and cellular details. Okay, it is commonly used in histopathology for the demonstrating of tissue structure and cellular details.
What is the principle? Okay, this is important. The principle is important for your viva, like, okay, for your viva it is important for the principle. So the principle is hematotoxylin is a basic dye. It is a basic dye that stain the acidic structure such as nucleus which occur the blue to purple. Okay, ये जनरल क्या करता है कि ब्लू कलर से ब्लू टू पर्पल को कन्वर्ट करता है. ओके, ब्लू से पर्पल. क्लियर? सो हेमाटोटॉक्सिलिन इट इज जनरली अ बेसिक डाई. इट इज बेसिक डाई. और जो बेसिक डाई होता है वो स्टेन करते हैं कि एसिडिक को. ठीक है, जैसे कि हेमाटोटॉक्सिलिन एक बेसिक डाई होता है, दैट्स व्हाई इट स्टेन द एसिडिक स्ट्रक्चर सच एज न्यूक्ली ब्लू टू पर्पल. और जो इयोसिन होता है, इयोसिन इज एन एसिडिक डाई. ठीक है, इयोसिन इज एन acidic dye that stain the basic component of the cell, that is cytoplasm, muscles fiber, collagen and red blood cell which occur pink to red. Okay, it occur pink to red. Clear everyone? नेक्स्ट हो गया कि उसका प्रोसीड्योर हम देखेंगे, स्टेनिंग का प्रोसीड्योर हम देखेंगे. सो प्रोसीड्योर क्या हो गया कि पहला हो गया कि डी पैराफिनाइज द सेक्शन इन जाइलिन. ओके, पहले का हम क्या करेंगे, डी पैराफिनाइज करेंगे. ठीक है, जाइलिन के द्वारा. ओके, देन रीहाइड्रेट थ्रो डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल टू वाटर. डिसेंडिंग ग्रेड मतलब पहले हो गया और सपोज 90%, देन 70%, देन 60%, ऐसा मतलब ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, देन हम क्या करेंगे, स्टैन विथ हेमाटोटॉक्सिलिन. ओके, देन हम हेमाटोटॉक्सिलिन से स्टैन करेंगे. देन वॉश इन वाटर एंड डिफरेंशिएट इफ रिक्वायर्ड. देन ब्लू द न्यूक्ली यूजिंग अल्कलाइन वाटर और अमोनियम वाटर. ठीक है, और अमोनिया वाटर. देन काउंटर स्टैन विथ, हम काउंटर स्टैन किससे करेंगे, इयोसिन से करेंगे. देन डिहाइड्रेट थ्रो असेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल. ठीक है, हम यहाँ पर क्या किए थे कि रीहाइड्रेट. ठीक है, बट हम यहाँ क्या करेंगे, डिहाइड्रेट. ओके, सो डिहाइड्रेट थ्रो असेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल. ओके, देन clear in xylene and then mount with DPX and cover with a cover slip. ठीक है, so this is the procedure of HE stain. Clear everyone? Okay, so what is the result will be happen? So the result here, as you can see, the nucleus is seen blue to purple color. Okay, nucleus कैसे दिखेगा, ब्लू टू पर्पल. साइटोप्लाज्म कैसे दिखेगा, पिंक कलर. मसल्स फाइबर कैसे दिखेगा, पिंक कलर. कोलाजन लाइट पिंक कलर. एंड आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल इज द ब्राइट रेड टू ऑरेंज कलर. क्लियर एवरीवन? ठीक है, सो द रिजल्ट एज यू कैन सी दैट न्यूक्लियस इज ब्लू और पिंक, साइटोप्लाज्म इज पिंक कलर. ओके, एंड मसल्स फाइबर कोलाजन. ठीक है, ये सारे क्या हो गया कि पिंक कलर ही आएगा. ओके, कोलाजन थोड़ा सा लाइट पिंक कलर आएगा एंड आरबीसी जो कि ब्राइट रेड टू ऑरेंज कलर में आएगा. ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस क्या है इसका? ठीक है, सो अगर हम एडवांटेजेस के बारे में बात करें, इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है, सो इट प्रोड्यूस. ओके, then easy, economical and reliable. Okay, then it is widely used for the routine diagnostic in pathology laboratory. Then it is suitable for the identifying normal tissue architecture and many disease condition. Okay, so these are the advantages. ठीक है, so this is ending here the first question. Okay, then the next question is what is fixation? क्वेश्चन दिया गया है कि फिक्सेशन क्या है, what is fixation. Classify the fixatives, then describe the features of an ideal fixatives. Then third is write briefly about the different preparation of formalin fixative.
ये भी 20 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला 2 मार्क का, देन 6 6 6, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर, हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिक्सेशन। ये जनरली 2 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज फिक्सेशन। तो फिक्सेशन की अगर हम बात करें तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। सो फिक्सेशन इज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन हिस्टोपैथोलॉजी। फिक्सेशन क्या होता है, ये जनरली पहला स्टेप होता है एंड इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन हिस्टोपैथोलॉजी। It is the process of preserving tissue in a lifelike state immediately after removal from the body by preventing the autolysis, यानी कि सेल्फ डाइजेशन। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि सेल्फ डाइजेशन, एंड प्यूट्रिफिकेशन मतलब बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो फिक्सेशन क्या हो गया है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग टिश्यू इन लाइफ लाइक स्टेट। ओके, इसको हम प्रिजर्व करते हैं टिश्यू को, जैसे कि मतलब लाइफ लाइक स्टेट, मतलब जैसे कि हम उसमें जान हो, उसमें जिंदगी हो, ठीक है। तो ये जनरली टिश्यू को हम, जैसे हम टिश्यू को निकालते हैं उसी तरह हम रखते हैं लाइफ लाइक स्टेट इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी बाय प्रिवेंटिंग ऑटोलाइसिस, यानी कि सेल्फ डाइजेशन and putrefaction, that means bacterial decomposition. So the main purpose of fixation is to maintain the structural integrity of cell. Okay, structural integrity मतलब हम जैसे सपोज हम एक किसी भी, अगर हम सपोज हार्ट को हम ठीक है हम रखना चाहते हैं, उसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम इमीडिएटली रिमूवल रिमूवल फ्रॉम द बॉडी वी मेंटेन, वी प्रिजर्व द हार्ट, ठीक है, सो दैट इट इट मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ सेल एंड टिश्यू, सो दे कैन बी processed, sectioned, stained and examined under the microscope. Clear everyone? Next, ठीक है, next. Just wait a second here. Okay. So next we can talk about the objective of fixation. What is the objective of fixation? So it preserves the tissue architecture. It prevents the enzymatic and bacterial degradation. Okay. Why you observe? Sorry. Why you fixation? What is the main motto? ठीक है. Because it preserves the tissue architecture. Second हो गया कि prevents the enzymatic and bacterial degradation. थर्ड हो गया कि harden tissue for easier handling. ओके, फोर्थ हो गया कि इट मेंटेन्स द सेलुलर एंड न्यूक्लियर डिटेल्स, देन इम्प्रूव द स्टैनिंग क्वालिटी, ठीक है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिक्सेशन। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट हो गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव। ओके, ये जनरली 6 मार्क का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव्स, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो फिक्सेटिव कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वे, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन फर्स्ट इज सिंपल फिक्सेटिव। पहला क्या हो गया कि सिंपल फिक्सेटिव, ठीक है। सो सिंपल फिक्सेटिव का मतलब क्या हो गया कि इट कंटेन ए सिंगल केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। सिंपल फिक्सेटिव का मतलब क्या हो गया कि इट कंटेन ए सिंगल केमिकल सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है फॉर्मालिन से, इथाइल अल्कोहल, मिथानल, ग्लूटाराल्डिहाइड, देन ऑस्मियम टेट्राक्साइड, ठीक है। सो क्या क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, मिथानल, ग्लूटाराल्डिहाइड होता है एंड ऑस्मियम टेट्राक्साइड होता है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज कंपाउंड फिक्सेटिव। ओके, दूसरा टाइप क्लासिफिकेशन इज द कंपाउंड फिक्सेटिव। सो कंपाउंड फिक्सेटिव्स क्या हो गया, कंपाउंड फिक्सेटिव का मतलब इट कंटेन 2 और मोर केमिकल। सिंपल फिक्सेटिव का मतलब इसमें उसमें एक ही तरह केमिकल था, बट कंपाउंड फिक्सेटिव में क्या होता है, कंटेन 2 और मोर केमिकल।
तो पहला क्या हो गया कि इसमें क्या क्या होता है, 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मालिन होता है, यानी कि NBF, 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मालिन। सेकेंड हो गया कि बोन स्पीड होता है। थर्ड हो गया कि कैरोनिज फिक्सेटिव होता है। नेक्स्ट इज जैंकोर्स फ्लूइड एंड लास्ट इज हेलिस फ्लूइड। ठीक है। सो इन कंपाउंड फिक्सेटिव पहला हो गया कि 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मालिन, बोइंस फ्लूइड, कैरोनिज फिक्सेटिव, जैंकोर्स फ्लूइड, हेलिस फ्लूइड। ठीक है। सो दीज आर द केमिकल्स। क्लियर एवरीवन? एक्सो अकॉर्डिंग टू एक्शन। ठीक है। सो पहला क्या था, पहला था अकॉर्डिंग टू दिस कंपोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू एक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्शन पहला हो गया कि कोआगुलेंट फिक्सेटिव। सो इन कोआगुलेंट फिक्सेटिव दीज कोआगुलेट और प्रेसिपिटेट प्रोटीन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोएगुलेट और प्रेसिपिटेट द प्रोटीन, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, एसीटोन एंड मर्क्यूरी क्लोराइड। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट हो गया कि नॉन कोएगुलेंट फिक्सेटिव। नॉन कोएगुलेंट में क्या होता है, दीज स्टेबलाइज द प्रोटीन विदाउट कोएगुलेशन। सो विदाउट कोएगुलेशन इट स्टेबलाइज द प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि फॉर्माल्डिहाइड एंड ग्लूटाराल्डिहाइड। ठीक है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द पर्पज। सो अकॉर्डिंग टू पर्पस पहला हो गया कि माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव। सो इन माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव यूज फॉर द रूटीन टिश्यू प्रिजर्वेशन, फॉर एग्जांपल 10% न्यूट्रल फॉर्मालिन, ओके, देन बाउंस बोनिस सॉल्यूशन। ठीक है। सो दिस इज द माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव। ठीक है। वो यूज 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मालिन, फॉर्मालिन हम यूज करते हैं, और क्या करता है कि बोनिस सॉल्यूशन भी हम यूज करते हैं। Then is cytological fixative. For the cytological fixation, we use to preserve the cellular details. ठीक है। For example, Caronese fluid and alcohol-based fixative. Clear everyone? Next हम देखेंगे कि what is the features of an ideal fixative. ये भी 6 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है। What is the features of an ideal fixative? So an ideal fixative should possess the following characteristics. पहला क्या हो गया, it preserve the tissue in a life like condition without distortion. Without distortion it preserve the tissue as in life like condition. दूसरा हो गया, इट प्रिवेंट ऑटोलाइसिस एंड बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन। ये प्रिवेंट क्या करता है, ऑटोलाइसिस का प्रिवेंट करता है और बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन को भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हो गया कि इट पेनिट्रेट्स द टिश्यू रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली। फोर्थ हो गया कि इट मेंटेन्स द सेलुलर एंड न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट इज इट प्रोड्यूस द मिनिमल श्रिंकेज और स्वेलिंग ऑफ टिश्यू, then does not dissolve or remove the important tissue component. Next is hardened tissue sufficiently for section cutting without making them brittle. Okay, so जो भी hardened tissue होता है इसको sufficiently for section cutting, अगर टिश्यू हार्ड नहीं होगा तो उसको हम सेक्शन कटिंग कैसे करेंगे, ठीक है, फॉर मेकिंग देम ब्रिटल। देन डज नॉट interfere with staining technique, allows long term storage of specimen। नेक्स्ट हो गया कि is stable, inexpensive and easy to prepare। नेक्स्ट हो गया कि is safe to handle and has minimal toxic effect। then it produce the reproducible and reliable histological result। clear everyone? So these are some point of an ideal fixative। clear? next हम देखेंगे कि what is the different preparation of formalin fixative। ठीक है। सो फॉर्मालिन फिक्सेटिव को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट तरह हम देखेंगे। अभी ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, ये भी 6 मार्क का है, ये लास्ट पार्ट। सो फॉर्मालिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव्स इन हिस्टोपैथोलॉजी। Commercially, formalin contain about 37 to 40% formaldehyde gas dissolved in water। ठीक है। So commonly formalin contain
कितना होता है कि 37 to 40% फॉर्मल्डिहाइड गैस विच डिजोल्व इन वाटर. सो 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मालिन यानी कि NBF. So the standard routine fixative in pathology laboratories prepared by diluting commercial formalin to make a 10% solution and buffering it to neutral pH. Okay, the pH is around 7.0. Okay, that's why neutral. Clear everyone? सो इसका हम एडवांटेज की अगर हम बात करें, सो एडवांटेजेस क्या हो जाएगा? इट एक्सीलेंट द प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर. Then it prevents the formalin pigment. It prevents the formation of formalin pigment. Then it is suitable for routine etch staining and most special stain. Okay. सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि 10% फॉर्मालिन सेलाइन कैसे बनता है. ठीक है. सो 10% फॉर्मालिन सेलाइन की अगर हम बात करें, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 10% फॉर्मालिन विथ नॉर्मल सेलाइन यानी कि 0.9% सोडियम क्लोराइड. ठीक है. सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 10% ऑफ फॉर्मालिन विथ नॉर्मल सेलाइन. क्या होता है 10% फॉर्मल सेलाइन? क्लियर एवरीवन? इसका यूज क्या होता है? यूज जनरली हम क्या कहते हैं कि इट इज रूटीन फिक्सेशन ऑफ टिश्यू and it helps to maintain the osmotic balance and reduce the tissue distortion. Clear? थर्ड पार्ट हो गया कि बफर्ड फॉर्मालिन. ठीक है. सो बफर्ड फॉर्मालिन क्या हो गया? इट कंटेन्स द फॉस्फेट बफर टू मेंटेन द न्यूट्रल पीएच. ठीक है. एडवांटेजेस क्या हो गया? इट प्रिवेंट्स द एसिडिटी, रिड्यूस टिश्यू आर्टिफिकेट्स, then preserve nuclear details better than unbuffered formalin. ठीक है. these are the advantages. नेक्स्ट हो गया कि कैल्शियम फॉर्मालिन. कैल्शियम फॉर्मालिन हम कहाँ यूज करते हैं? सो फॉर्मालिन सॉल्यूशन कंटेनिंग कैल्शियम सॉल्ट. यूज हम कहाँ करते हैं? इट प्रिजर्व द लिपिड एंड एंजाइम्स मोर इफेक्टिवली and it is commonly used in certain histochemical procedure. नेक्स्ट हो गया कि फॉर्मल सब्लिमेंट. ठीक है. सो फॉर्मल सब्लिमेंट यानी कि फॉर्मालिन मर्क्यूरी क्लोराइड. सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मालिन एंड मर्क्यूरी क्लोराइड. ओके, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मालिन एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड. and if I talk about the advantages, it is excellent nuclear preservation. ये क्या हो गया? एक्सीलेंट न्यूक्लियर प्रिजर्वेशन. एंड इट प्रोड्यूस ए शार्प हिस्टोलॉजिकल डिटेल्स. डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएगा? इट मे लीव मर्क्यूरी पिगमेंट डिपॉजिट दैट रिक्वायर द रिमूवल बिफोर स्टेनिंग. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट हो गया कि एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मालिन एज ए फिक्सेटिव. व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मालिन एज ए फिक्सेटिव? It is inexpensive and readily available, and it is rapid tissue penetration, good preservation of morphology, then compatible with routine paraffin processing, and then excellent for long-term storage, then suitable for the most histopathological examination. ठीक है. So these are the advantages. What are the disadvantages? Disadvantages क्या हो जाएगा फॉर्मालिन का? ये जनरली स्लो फिक्सेशन करता है, स्लो फिक्सेशन कंपेयर टू सम अदर फिक्सेटिव. ठीक है. एंड कैन प्रोड्यूस फॉर्मालिन पिगमेंट इफ नॉट बफर्ड. ओके, इफ नॉट बफर्ड इट कैन प्रोड्यूस द फॉर्मालिन फिक्सेटिव. एंड इट टॉक्सिक वेपर में इरिटेट दीज आईज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. एंड प्रोलॉन्ग्ड फिक्सेशन, ठीक है, में रिड्यूस द एंटीजेनेसिटी फॉर सम immunohistological test. Clear everyone? So this is all about your second question. Okay, then next is your third question. Okay, so question is, what is cytology? Describe in details the collection, okay, and the fixation staining procedure for the pap smear. ठीक है. pap smear के बारे में पूछा गया है. एंड राइट द एडवांटेजेस ऑफ पाप स्मीयर.
ठीक है, ये भी 20 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, सो पहला दिया गया है क्वेश्चन कि व्हाट इज साइटोलॉजी। ये जनरली कितना मार्क का क्वेश्चन है? 3 मार्क का क्वेश्चन। So, cytology is the branch of pathology that deals with the study of individual cells or small group of cells to diagnose the disease. Clear, everyone? It is used to detect infections, inflammatory conditions, pre-cancerous changes and cancer. Clear? इसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं? इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, प्री कैंसरस चेंजेस एंड कैंसर। ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ साइटोलॉजी इज द पाप स्मीयर, यानी कि पापा निकोलाउ यानी कि पाप स्मीयर, which is a screening test used to detect the abnormal cell from the cervix and aid in the early diagnosis of cervical cancer. Clear, everyone? Next, so use of cytology. So what are the uses of cytology? It is early detections of cervical cancer, then it diagnosis of infections and inflammatory disease, it detections of precancerous lesions, it monitoring the treatment and follow up of patients, and it evaluate of body fluids and fine needle aspirate samples. Clear, everyone? So साइटोलॉजी को हम क्या यूज करते हैं कि इट इज ईयरली डिटेक्शंस ऑफ सर्विकल कैंसर, डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके, जस्ट वेट अ सेकंड हियर। So next question is collection of pap smear. Okay, so as you can see here, the collection of pap smear. ठीक है, just wait a second, just wait a second. Okay, so here the collection of pap smear specimen, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, सो प्रॉपर स्पेसिमेन कलेक्शन इज एसेंशियल फॉर द एक्यूरेट डायग्नोसिस। ओके, so what is the procedure? The procedure is the patient is placed in the lithotomy position. Okay, पेशेंट को हम क्या करते हैं कि लिथोटोमी पोजीशन में हम रखते हैं। ठीक है, स्टेराइल स्पेक्यूलम इज इंसर्टेड इनटू द वेजाइना टू विजुअलाइज द सर्विक्स। ओके, देन एक्सेसिव म्यूकस इज जेंटली रिमूव्ड विदाउट डैमेजिंग द सेल। ओके, जो भी एक्सेसिव म्यूकोस होगा उसको हम जेंटली रिमूव कर देंगे विदाउट डैमेजिंग द सेल। देन द सेल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन जोन ऑफ द सर्विक्स यूजिंग एरेस वुडन स्पेचुला और साइटोब्रोस। ठीक है, और एंडो सर्विकल ब्रोस। सो द कलेक्टेड मटेरियल इज इवनली स्प्रेड into a clean glass slide. Then the smear should be fixed immediately to prevent the air drying artifacts. Clear, everyone? So these are the collection procedure. नेक्स्ट हो गया कि उसका प्रिकर्सन। तो प्रिकर्सन क्या कैसे होता है? तो इट अवॉइड द कलेक्टिंग सैम्पल्स ड्यूरिंग द menstruation. So during menstruation, avoid the collecting samples. Then the patient should avoid the vaginal medication and intercourse for 24 to 28 hours before the test. Okay, so before the test यानी कि 24 to 48 hour patient should avoid the vaginal medication and intercourse. Clear, everyone? Next is the label slides properly to avoid the identification error. Okay, clear, everyone? नेक्स्ट हो गया कि फिक्सेशन ऑफ पाप स्मीयर। ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, फिक्सेशन ऑफ पाप स्मीयर। सो फिक्सेशन इट प्रिजर्व द सेलुलर मॉर्फोलॉजी एंड प्रिवेंट्स द ड्राइंग एर्टिफैक्ट्स। ओके, एर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट इज उसका हम मेथड देखेंगे अगर हम। सो इमीडिएटली आफ्टर प्रिपेयरिंग द स्मीयर, ओके, सो वी परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर प्रिपेयरिंग द स्मीयर, immerse the slide in 90%, 95% ethyl alcohol for at least 15 to 30 minutes, and it is alternatively a commercial cytology spray fixative may be used. What is the purpose? The purpose is
It preserves the nuclear and cytoplasmic details. Okay, it preserves the nuclear and cytoplasmic details, prevents the cell shrinkage and distortion, ensure high quality staining result. Then it maintains the specimen integrity for microscopic examination. It immediate fixations is critical because delay fixation can produce the poor quality smear and inaccurate interpretation. Clear everyone? So this is the procedure purpose. Okay. नेक्स्ट पूछा गया कि हम पाप यानी कि पापा निकोलाउ स्टेनिंग के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सो पाप स्टेनिंग प्रोसीजर हम देखेंगे। ये जनरली कितना मार्क का क्वेश्चन है? 8। ओके, इट इज 8 मार्क। सो द पाप स्टेन इज ए multi-chromatic staining technique designed to provide the excellent visualization of nuclear and cytoplasmic details. What is the principle? The principle is hematotoxylin stain cell nuclei blue, then orange G यानी कि OG6 stain keratinize the cell orange, then EA यानी कि eosin agar stain imparts different shades of green, blue, pink to cytoplasmic components, allowing clear differentiation and various cell types. Clear everyone? नेक्स्ट हम स्टेनिंग का प्रोसीजर देखेंगे। सो पहला स्टेप क्या हो गया कि फिक्सेशन हम करेंगे, यानी कि फिक्स द स्मीयर इन 95% इथेनॉल इमीडिएटली आफ्टर प्रिपरेशन। स्टेप 2 क्या हो गया कि हाइड्रेशन। सो इन हाइड्रेशन द ट्रांसफर द स्लाइड थ्रू द डिसेंडिंग ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल टू डिस्टिल वाटर। तीसरा स्टेप हो गया कि न्यूक्लियर स्टेनिंग। सो द न्यूक्लियर स्टेनिंग इज द स्टेन विथ हेमाटोटॉक्सिलिन टू कलर द न्यूक्ली ब्लू। फोर्थ हो गया कि वॉशिंग एंड ब्लूइंग, यानी कि वॉश इन वाटर एंड ब्लू द न्यूक्ली यूजिंग अल्कालाइन वाटर और स्कॉट टैप्स वाटर सब्सटीट्यूट। फिफ्थ हो गया कि हम डिहाइड्रेशन करेंगे, यानी कि पास द स्लाइड थ्रू 95% अल्कोहल। ओके, देन स्टेप 6 इज ऑरेंज जी स्टेनिंग, यानी कि OG6। So immerse the orange G यानी कि OG6 solution to stain the keratinized cell. Step 7 is rinse यानी कि briefly rinse in alcohol to remove the excessive stain. Okay. Step 8 is EA यानी कि eosin agar staining. So stain with EA solution यानी कि EA36, EA50, EA65 which provides the differential cytoplasmic staining. Clear everyone? नेक्स्ट हो गया स्टेप 9 यानी कि फाइनल डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेट थ्रू एब्सोल्यूट अल्कोहल। स्टेप 10 हो गया क्लियरिंग, क्लियर द स्लाइड इन जाइलिन। स्टेप 11 हो गया माउंटिंग, माउंट विथ DPX और अनदर सुइटेबल माउंटिंग मीडियम एंड प्लेस ए कवर स्लिप। ठीक है, ओके। सो अभी मैं जहाँ पर हूँ एक्चुअली यहाँ बहुत ही शोर हो रहा है और बाइक्स मतलब यहाँ पर जो रोड है बहुत जाम है। ठीक है, सो इसलिए थोड़ा बाहर का आवाज़ आ सकती है। ठीक है, सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, सो क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज द अपीयरेंस आफ्टर पाप स्टेनिंग। व्हाट इज द अपीयरेंस आफ्टर द पाप स्टेनिंग? सो द जो भी सेल न्यूक्ली होता है ब्लू टू डार्क ब्लू होता है, और जो सुपरफिशियल स्क्वामोस सेल होता है पिंक और ऑरेंज कलर होता है। नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट सेल होता है ब्लू टू ग्रीन कलर होता है। देन पैरावेसल सेल्स आर ग्रीनिश ब्लू, केराटिनाइज्ड सेल्स आर ब्राइट ऑरेंज, रेड ब्लड सेल RBC आर ऑरेंज टू रेड। ठीक है, सो दीज आर द अपीयरेंस आफ्टर पाप स्टेन। क्लियर एवरीवन? द लास्ट पार्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ पाप स्टेनिंग। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ पाप स्टेनिंग? So it enables the early detection of cervical precancerous lesions and cervical cancer. It provides the excellent nuclear and cytoplasmic details for the accurate diagnosis. It differentiates various epithelial cell types clearly through multicolor staining. It is simple, reliable, and economical screening method. It is useful for detecting the infections, inflammation, okay, then hormonal changes and malignant cell.
It is help to reduce the cervical cancer morbidity and mortality through early diagnosis and treatment, and it is widely accepted as the standard screening टेक्निक इन द साइटोपैथोलॉजी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि ए बी सी पार्ट, द लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट इज कंप्लीटेड हियर। ठीक है, हियर योर लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट इज कंप्लीटेड। ठीक है, so I hope you all are understand, okay, I hope you all are understand here। ठीक है, so if you understand then like the video and subscribe my channel। ठीक है, thank you, clear everyone, okay, thank you everyone।